Yes. Sriha, can you see the screen? No, ma'am. It's not visible. Okay. Wait. There is an option of present now. And I'm going to present. I should present entire screen or a window. I am very much new to this Google Meet application. So can you please guide me for that? There's an option of present now. Can any other student may guide me for that? I have to show in the present section your entire screen, a window, a tab. 3 options are coming there. So recently, a tab. Okay. Share a Chrome tab. I want to share this PPT with you. Can you see the PPT? Sneha? No, it's not visible. I'm sure the entire screen, okay. In entire screen, this screen you can see. Now I'm going to share something with you. Whether it is visible? No, I guess no. Okay. So let's try for another thing, a window. Yes. I think that option should be visible. Now I think you all can see. Yes, ma'am. Yes, Sneha, is it visible? It is visible. Okay, thank you, beta. Then I request you to please unmute yourself so that we can continue with the class. Now I have turned off my camera so I can focus more on the screen. Okay. If any student has any query, then write in the chat box. Is there any option in the Google Meet section that the name of the students can be seen on the one side of the screen? Okay. I'm not so much familiar about that. Okay. I hope it is visible to everybody. Let's start with the class right now. There must be some option so that I can see the list of the students. Ma'am, there is a user symbol beside the chat box symbol. User symbol. On the right hand side corner of your screen. User symbol. A number 43, yes, I can see. But whenever I'm going to share the screen or the PPT, this symbol is not clear. Now I'm sharing this with you. So I cannot see that symbol that you were talking about. I want to see simultaneously the list of the screen along with this PPT. Is there any option? No? Okay. Then okay, and what can be done? Let's continue with that. Okay, the topic is biology. It's a 2-credit course. You can see on the screen. I have made a presentation for you students. Okay, first of all, I want to talk in general with you. Some of the students, I want to unmute some of the students and I want to talk what they are thinking about their 4th semester, their 3rd semester, their online classes and all that. If anybody wants to say something, anybody wants to share his or her experience with me. अच्छा, restore option use करके हो सकता है. Restore तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है. चलो मैं I'll search by my own कि किस तरह से क्या कुछ होता है. ये first time ही था. Okay. Yes, let's ask with some of the students. Yes, Rohit Kumar Chaurasia. Can you unmute yourself? Rohit Kumar Chaurasia, are you there? Yes, ma'am. Rohit, yes. How was your experience in the 3rd semester? All the semester you went through only online classes and
all the panic situation were there. कैसा था आपका experience, कैसा था online classes में? Now you have promoted in the 4th semester, okay, without examination. I think your batch is the luckiest or the unluckiest one. I cannot say exactly that so far you were appearing only in the one examination of 1st semester, right? Yes, ma'am. Okay, रोहित, कैसा था बेटा आपका experience online classes में 3rd semester में? आपको अब आगे 4th सेम में भी इसी मोड में कंटिन्यू करना है, सो आई वांट टू नो अबाउट दैट. एनी ऑफ द स्टूडेंट? ओके रोहित, इफ यू डोंट वांट टू शेयर देन राइट इन द चैट बॉक्स. रौनक, वैष्णव or any of other student who wants to say something about that. Yes, Sarjana speaks very well. I can remember she has done anchoring in the conference also. Sarjana, Sveha, I can remember their name. Yes, Sarjana, you want to say something? Oh, my life has been spoiled. Our degree is of a waste. Okay. Yes. What else to say? Okay, you have got so much talent in you that you were able to participate in many kind of activities if the colleges run smoothly. Yeah, but now what can be done? Okay, let's hope for the best that from July onwards we can continue with the students so that I can see you personally in the college in the electrical section. Okay, Sarjana, thanks. Okay, now Sarjana, only Sarjana can unmute. Okay, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द बायोलॉजी. ओके, अब ये बायोलॉजी आप लोगों ने सोचा होगा कि व्हाई नाउ दिस बायोलॉजी सब्जेक्ट दैट वी हैव लेफ्ट इन द 10th क्लास, व्हाई दिस बायोलॉजी सब्जेक्ट इज अगेन अपीयरिंग इन द इंजीनियरिंग सिलेबस. ओके, तो ये जो बायोलॉजी आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, स्पेशली इन नन अदर स्ट्रीम द बायोलॉजी सब्जेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच. बायोलॉजी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है. वेदर आई हैवंट डन एनी स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी, बट आई हैव रेड biology in my undergraduate classes so that I can continue with the topics. Some of the topics that are relevant with you, some topic that I have read in my class time, and some topics that are also newer to me. So it's again a learning session for me also, along with you people. आप लोगों के साथ साथ मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा इसमें कि नया सब्जेक्ट हम क्या पढ़ सकते हैं. अभी बायोलॉजी की रिलेवेंस आप लोग देख रहे होंगे नाउ डेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है. किस सेंस में इंक्रीज हुई है? वैक्सीनेशन के सेंस में. ठीक है, वैक्सीनेशन के सेंस में हम लोग सुनते आ रहे हैं कोरोना एक वायरस है. वायरस के लिए अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन डेवलप कर रही हैं. नाउ व्हाट इज दिस वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है. वायरस एक होस्ट बॉडी के अंदर ही अपने आप को सरवाइव कर सकता है, वहीं पे ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है. और विद इन द बॉडी वायरस के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि ये कभी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता, एयर में अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता. फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन इट नीड्स सम बॉडी, सम ह्यूमन बॉडी. तो वायरस एक तरह का पैरासाइट है, तो पैरासाइट के फॉर्म में हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है. तो आपका ये जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस में एक सेक्शन है माइक्रोबायोलॉजी, इन विच वी हैव टू डील विद द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, कि किस तरह से वायरस का अटैक होता है, किस तरह से बैक्टीरिया का बॉडी पे अटैक होता है, एंटीजेंस, एंटीबॉडी. लिटिल बिट आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट फिर भी हम इस टॉपिक को लेंगे. वैसे तो काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस आई कैन सी हियर, कि आपका जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी डिटेल्स उसमें गिवन है. इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड जेनेटिक्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, मैक्रोमोलिकुलर एनालिसिस, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो लॉट ऑफ सिलेबस हैज बीन कवर्ड. बट हम लोग क्या करेंगे, we will read or study smartly in that. Okay, because for you it is not possible, for engineering students especially, it is not possible to cover all the biological aspects.
पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए। आपको मेनली डिस्कस करना है अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। मेनली आपको क्या डिस्कस करना है? मेनली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इसका एप्लीकेशन क्या होते हैं इंडस्ट्रीज में, वो सब कुछ डिस्कस करना है। वैसे तो ये काफ़ी डिटेल सिलेबस है, बट हम स्मार्टली स्टडी करेंगे। मैं आपको इसके नोट्स वगैरह भी गूगल क्लासरूम पे या वॉट एवर द प्लेटफॉर्म इज गिवन, और जो भी कुछ होगा व्हाट्सएप वगैरह जो भी ग्रुप होगा आपका, उसके थ्रू मैं आपको अपने जो भी नोट्स हैं वो शेयर करूंगी, बुक्स वगैरह शेयर करूंगी, ताकि आप इसके बारे में प्रॉपरली पढ़ पाएं और उतना ही पढ़ पाएं जितना कि आपके लिए रिक्वायर्ड है। क्योंकि अदरवाइज तो ये जो कोर्स मैं देख रही हूँ, ये कोर्स तो पूरा अंडर ग्रेजुएट को की बायोकेमिस्ट्री को कवर करता है। दैट मच इज नॉट सो मच कि आप उसका बहुत डिटेल में जाके उसको स्टडी करें। तो हम स्मार्टली स्टडी करेंगे और हमें नॉलेज भी पूरी हो जाएगी, एज वेल एज हमें पढ़ना भी कम पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नाउअडेज कि हम कम पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ओके, बायोलॉजी इज नथिंग अबाउट कि आप बहुत थ्योरेटिकल पढ़ते जा रहे हैं और लिखने का हिस्ट्री की तरह उसका टॉपिक लिखते जा रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। बायोलॉजी इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैथ्स की तरह से आपको बायो को स्टडी करना है और इसमें फुल मार्क्स लाने हैं ना, 100 on 100 नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मैं इंटरनल में ही काट लूंगी आपके नंबर तो काफी सारे। ओके, तो जो हम स्टार्ट करेंगे आज, तो जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अबाउट द सिलेबस। ओके, कि हम क्या क्या और आपके सिलेबस में बायोलॉजी को क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, लेट मी आस्क विद सम ऑफ द स्टूडेंट अबाउट बायोलॉजी। कुछ स्टूडेंट्स से मैं पूछना चाहूंगी कि वो बायोलॉजी के बारे में उनके माइंड में बायोलॉजी वर्ड सुनते ही क्या समझ में आता है। किससे पूछूं? somebody wants to raise hand? रजत शिवरैन कर दिया क्या प्रमोट? नहीं प्रमोट तो नहीं किया बेटा, एग्जाम होंगे अब तो, है ना। यस, कोई स्टूडेंट जो अपना हैंड रेज करना चाहे, जो बायोलॉजी वर्ड जैसे ही आपके माइंड में आता है, व्हाट फर्स्ट यू थिंक? यस, विनीशा, विनीशा कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? विनीशा गुर्जर मैम, स्टडी अबाउट ऑर्गेनिज्म, study about living organisms. Okay, living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजी। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, हम उन सबकी स्टडी नहीं करेंगे। हम बायोलॉजी का वो एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे जो एस्पेक्ट हमें बताता है कि हाउ बायोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट टू एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, स्पेशली फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ओके, एक और स्टूडेंट से मैं बात करना चाहूँगी। एक और स्टूडेंट था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, जो सबसे आगे की तरफ बैठता था और स्पेक्स में बहुत सिंसियर सा स्टूडेंट था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। चलिए, तो मैं सुमित सैनी से बात करती हूँ। विशाल था, उत्कर्ष सिंह। चलो विशाल से भी बात करेंगे। विशाल को मैं भूल गई हूँ। सुमित सैनी मुझे याद आ रहा है। ये सुमित सैनी विथ स्माइलिंग फेस। सुमित, कैन यू हियर मी? सुमित, गुड आफ्टरनून मैम। यस, हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? ठीक है घर पे? मैम, यस मैम। एंजॉयिंग द लॉकडाउन पीरियड सो फार? ओके, एंजॉय करते अब तो बोर हो गए होंगे। ओके, वी होप फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाए। हाँ सुमित, आप क्या सोचते हैं बायोलॉजी के बारे में? Why biology has been introduced in your syllabus? क्या यूज होगा बायोलॉजी का फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? मैम, वो गैजेट्स बनते हैं जो हाथ में पहनने वाले थे, मैम नाम याद नहीं आ रहा, इसीलिए कि मतलब वो जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसको बनाए तो उसको हाथ का मैकेनिज्म पता हो कि हाँ हाथ में कहाँ कहाँ वेन्स होती हैं, कहाँ कहाँ नर्व्स होती हैं, इनके बारे में। ओके, गुड सुमित, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मेनली देखिए, बायोलॉजी का मेन पर्पस है आपके सिलेबस में डालने का। देखो, बायोलॉजी क्या है? मतलब स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर तरह के मैकेनिज्म होते हैं। हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मैकेनिज्म हैं उन्हें हम मशीन्स में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दिस, जैसे आपने देखा होगा आपके सिलेबस में गिवन भी है उसका एग्जाम्पल, कि
अब हमारी आइज का जो मैकेनिज्म होता है कि हमारी आंखें किसी को देखती है, फिर उसकी इमेज बनती है, फिर हमारा माइंड उसे रिकॉग्नाइज करता है, फिर हमें पता चलता है कि हाँ ये सुमित है, ये बायोलॉजी है, ये एक बुक है, ये एक लैपटॉप है जिसे मैं देख सकती हूँ। मतलब आइज हमारा क्या फंक्शन करती है? आइज किसी चीज को देखती है, उसकी इमेज बनाती है और हमारा माइंड उसे बताता है कि हाँ जो चीज मैं सामने देख रही हूँ वो एक लैपटॉप है, वो एक टेक्स्ट है जिसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ स्क्रीन पे। सिमिलरली आप सबके पास मोबाइल है, सबके पास कैमरा है, आप कैमरा से वो इमेज लेके देखिए। कैमरा भी आपको क्या बताएगा कि आपने वो फोटो क्लिक किया है, वो इमेज है और उस इमेज को आपको शो करके बताता है। तो हमारे जो आइज का मैकेनिज्म है और कैमरे का मैकेनिज्म है वो सिमिलर है। इसका मतलब जैसे आप लोग सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एक तरफ से स्विच ऑन किया, दूसरी जगह पे एकदम से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से कंडक्ट करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फटाफट से पहुंच जाती है। हमारी बॉडी में भी क्या होता है? पाँव में सुई चुभती है, कांटा चुभता है, कुछ भी होता है, जल्दी से हमारे माइंड तक उसके सिग्नल पहुंच जाते हैं और हम क्या करते हैं? उस पिन से, उस कांटे से अपने आप को दूर कर लेते हैं। मतलब इमीडिएट हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के थ्रू इमीडिएट रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। ये एक मैकेनिज्म है। क्या हम इस मैकेनिज्म को किसी मशीन में अप्लाई कर सकते हैं? सेंसर्स बनाने में, डिटेक्टर्स बनाने में। जैसे ही कहीं पे, जैसे आप बायो सेंसर्स के बारे में सुनते हैं कि जैसे ही कोई एंटर करता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, गेट्स ओपन हो जाते हैं। मतलब इस तरह की जो सेंसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में कौन सा सेंस होता है? हमारी बॉडी में टेस्ट का सेंस होता है, हमारी बॉडी में हियरिंग सेंस होता है, हमारी बॉडी में टच का सेंस होता है, विजन का सेंस होता है। तो उसी तरह का सेंस जो विद इन अ ह्यूमन बॉडी और बायोलॉजिकल बॉडी प्रेजेंट है, क्या वो उस तरह के कंसेप्ट को हम किसी मशीन में अप्लाई कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारी बॉडी में किसी भी तरह का रिफ्लेक्स एक्शन आ गया, क्या वो रिफ्लेक्स एक्शन किसी मशीन में अप्लाई किया जा सकता है? बॉडी में ऐसे बहुत सारे पोर्शन हैं। जब तक आप खाना नहीं खाते हो बॉडी में कुछ नहीं होता। जैसे ही एक बाइट खाने का अंदर जाता है, हमारे स्टमक में क्या होता है? हमारे स्टमक में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, वो डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब है जैसे ही स्टमक में ये सेंसेशन जनरेट हुआ कि कोई फूड अंदर पहुंचा है, उसने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। तो यही मैकेनिज्म हम चाहते हैं कि बायो का जो लिविंग वर्ल्ड के जो मैकेनिज्म है उसे हम मशीन्स में अप्लाई कर सकें। तो किस तरह से वो एप्लीकेशन पार्ट होगा, उसके लिए हमें कुछ बेसिक बायो कंसेप्ट्स को जानना होगा। अभी आप लोग वायरस के बारे में काफी कुछ पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं हम भी कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। कोरोना का नया वेरिएंट पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कोरोना वेरिएंट में म्यूटेशन जल्दी हो जाता है। कोरोना में बॉडी टू बॉडी जैसे ही उसका ट्रांसमिशन होता है, वो म्यूटेशन के थ्रू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इंडियन साइड में इसका इफेक्ट कम है, जो भी यूके या यूएस वगैरह कंट्रीज हैं उनमें इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो ये सब वेरिएशन क्यों आता है, ये म्यूटेशन क्यों होता है? वायरस में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट कॉजेस टाइप ऑफ म्यूटेशन, और वो म्यूटेशन किस तरह से ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है? तो हम इसमें कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे, वैसे तो आप लोगों ने अपने 10th तक के क्लास में पढ़ा होगा कि डीएनए, आरएनए वगैरह क्या होते हैं, जेनेटिक्स क्या होती है, मेंडल्स लॉ वगैरह पढ़ा होगा ना आपने, कि किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन ट्रांसफर होता है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, और उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो बहुत डिटेल मैकेनिज्म, या हम इसमें सेल डिवीजन वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे। हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें? मेनली हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कंसेप्ट है जेनेटिज्म का, जेनेटिक्स का जो कंसेप्ट है, जीन ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है, हाउ इट कैन बी अप्लाइड फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इंजीनियरिंग में आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, हम इसमें मेनली फोकस करेंगे ऑन द एप्लीकेशन पार्ट। जैसे एंजाइम काइनेटिक्स होती है, एंजाइम की किस तरह से रिएक्शन होती है, उस एंजाइमेटिक रिएक्शन को हम किस तरह से रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का जो जेनेटिक सिस्टम है, डीएनए का जो सिस्टम है, बायोटेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है, वो किस तरह से रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो सकता है।
हम इंजीनियरिंग और बायोलॉजी की नॉलेज को कंबाइन करके ये देखेंगे कि किस तरह से हम कुछ नया प्रोजेक्ट इसमें कैरी आउट कर सकते हैं, क्या बेसिक एप्लीकेशन हो सकती है बायोलॉजी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। उसके लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पता होना जरूरी है। तो आपका सिलेबस इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको इसमें बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता हो। दिखने में तो ये बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस लग रहा है 10 यूनिट्स का, बट हम इसे बेसिक कंसेप्ट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। अब आपने ये भी सुना होगा वायरसेस की बॉडी। चलिए किसी स्टूडेंट से मैं पूछ लेती हूँ, वायरसेस की बॉडी किसकी बनी होती है? सुनते हैं ना हम लोग, प्रोटीन्स की। यस, विशाल शर्मा। चलो विशाल, उत्कर्ष has suggested your name. Vishal, are you there? Vishal Sharma, unmute yourself. Yes, Vishal cannot unmute. Vishal can write. Okay. Vishal, my question for you. Protein is made up of which monomer? Sanjay Singh has left the meeting. Why, Sanjay? Yes, Vishal, my question for you is प्रोटीन के बारे में हम सुनते हैं। प्रोटीन किस मोनोमर से मिलके बनता है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर। ओके, एक कोई यूनिट पॉलीमराइज होके प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, उस यूनिट का क्या नाम है? एनीबडी मे राइट इन द चैट बॉक्स। कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कि प्रोटीन किस तरीके से प्रोटीन किस मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से बनता है। बॉडी में प्रोटीन पढ़ते हैं ना, प्रोटीन किससे मिलता है हमें? बॉडी बिल्डिंग फूड से, अमीनो एसिड्स। यस, अमीनो एसिड, वेरी गुड बेटा। सर्जना हैज आल्सो रिटन करेक्टली, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, तो हम इस प्रोटीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग सुन रहे होंगे वायरसेस के केस में वायरस की बॉडी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालता है, इन सब के बारे में भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो जो ये फर्स्ट क्लास है, इसमें मैं आपको बताती हूँ अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड आउटकम्स ऑफ द कोर्स। ओके, जो आपका यूनिट नंबर 1 है। व्हाट इज यूनिट नंबर 1? इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। What are the main objectives? What is the scope of biology? What are the outcomes of this course? Why biology has been introduced in your syllabus? Okay, तो हम इसको सिस्टमैटिक मैनर में डिस्कस करते हैं। इसके नोट्स मैं आपको धीरे धीरे गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगी। गूगल क्लासरूम, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइन द गूगल क्लासरूम, बट आई अगेन रिक्वेस्ट कि प्लीज जॉइन द गूगल क्लासरूम बाय योर मेल आईडी ऑफ SKIT डोमेन। ओके, जो skit.ac.in वाला जो मेल आईडी है, क्योंकि फर्दर भी जो भी कम्युनिकेशन वगैरह होता है वो उस पर ईजिली कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसी मेल आईडी से ज्वाइन करें, तो जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो नोट्स मैं आपको उसी के थ्रू प्रोवाइड करूंगी। ओके, यस, बायोलॉजी। अभी दिस टाइम वी कैन सी कि जो बायोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं, बायोलॉजी का जो मेन सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस हम क्या देख सकते हैं? जैसे ही कोरोना हुआ, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, या तो अब घर में इम्यूनिटी बढ़ा के, मेनली जो फोकस किस पे किया जा रहा है? इम्यूनिटी इंक्रीज कीजिए, इम्यूनिटी इंक्रीज कीजिए। व्हाट इज दिस इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मींस बॉडी की टेंडेंसी कि वो किस तरह जर्म्स के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। अब ये चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये डिपेंड करता है। ये कहते हैं ना, जितना ज़्यादा आप न्यूट्रिशन लेंगे, जितनी अच्छी न्यूट्रिशियस आपकी डाइट होगी, उतना ही आपकी बॉडी इम्यून होती जाएगी और इन वायरसेस के अगेंस्ट प्रॉपरली फाइट करेगी। तो ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, किस तरह से वैक्सीनेशन को जनरेट किया गया है, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो वैक्सीनेशन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर आपने सुना होगा इसका क्लिनिकल ट्रायल भी होता है, किस तरह से ट्रायल्स लिए जाते हैं। तो अभी का जो पूरा टाइम आप देख रहे हैं 2019 से लेके 2021 का जो पूरा टाइम टेन्योर जो हम देख रहे हैं, इन दिस टेन्योर एनी ऑफ द स्टूडेंट, एनी ऑफ अदर मेंबर और किसी भी फैकल्टी मेंबर या किसी भी अपने फैमिली मेंबर से आपने अगर बात की होगी, एवरीबडी हैज डिस्कस्ड अबाउट वन टॉपिक ओनली, nothing else, one topic, and that topic is corona. And what is this corona?
हाउ दिस कोरोना कैन बी क्योर्ड, किस तरह से हम इसकी कोरोना को खत्म कर सकते हैं, किसी जो भी बीमार हो जाते हैं उसको ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में हम सब कुछ ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पूरा टाइम हम देख रहे हैं, ये पूरा टाइम ही बायोलॉजी पे डेडिकेटेड है। बट नॉट ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, बायोलॉजी के यूजेस होते हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नैनो टेक्नोलॉजी में, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स में और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में भी हम बायोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स को अडेप्ट कर सकते हैं। वी कैन मेक यूज ऑफ दैट। ओके, इंजीनियरिंग में आप लोग काफी कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, काफी कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, बट इंजीनियरिंग का रियल एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग? कौन बताएगा? Yes, please raise your hand or unmute yourself and answer. What is the real application of engineering? किससे पूछ सकती हूँ मैं? मोहित सिंह. I think this student is new to me. ये स्टूडेंट पहले नहीं थे क्लास में. राघव सैनी से शायद क्लास स्टार्ट होती थी. No, I guess पुलकित सोनी से क्लास स्टार्ट होती थी. पुलकित सोनी is not there in the class yet. Mohit Singh is new to us. New to me, sorry. Mohit Singh, can you unmute yourself? Mohit Singh, are you there? Mohit is not responding. Very bad. Any student should join the class. Okay, Mohit is saying in the chat box, just make human life easy. Can you give me the real-time application of engineering? Electrical engineering. What you can do? Just getting a job in RSEB or JVVNL. Other than that, what the real-time application you can talk about? Aryan Mewada, ये student भी मुझे new लग रहे हैं. Aryan Mewada, Aryan, are you there? Write in the chat box or you can unmute yourself and share your views with me. Yes, Aryan, you are there. Yes, Aryan. Write in the chat box what you think. Just beside getting job and all that, what you think it is the real use of an electrical engineering student. Existing companies में job करना, किसी भी electrical industry में job करना, इसके अलावा I want to know about your thoughts कि electrical engineering students का society के लिए क्या role हो सकता है? Any of the student may write in the chat box. Yes, काफी student अच्छा भी लिखते हैं. रौनक, रजत, राजू, रवि कुमार मीना, यस, ऋतुराज, रोहित चौरसिया, रोहित मीरवाल, ये स्टूडेंट तो बहुत अच्छा लिखते हैं. आई कैन रिमेम्बर देयर नेम. श्रिया शर्मा, यस, राइट इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो अबाउट योर व्यूज. आई वांट टू नो अबाउट दैट. आई डोंट वांट टू मेक द क्लास कि बस मैं बोलूं और आप सुन लें. नॉट लाइक दैट. You have to be interactive all the time. Yes, Shriya has written, for society, we focus on sustainable power transmission. Okay, good. Good. Shriya has given her views. Shubnesh, Sneha भी तो अच्छा बोलती थी. राजू ने क्या लिखा है? राजू शर्मा ने work in transport networks, lighting, heating, ventilation, life system, power generation and distribution, renewable energy, manufacturing. Oh, ने तो सारे फील्ड कवर कर लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा. यस, सर्जना हैज रिटन टू फाइंड अ वे टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, गुड. टू यूज द टोटल पावर प्रोड्यूस्ड. ओके, यस, चलिए. आई होप आप में से काफी स्टूडेंट. वरुण ने क्या लिखा है? हाँ, वरुण कुमावत का नाम भूल गई थी मैं. टू डिजाइन, डेवलप, टेस्ट एंड सुपरवाइज द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. ओके, गुड. आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपको जाके किसी फैक्ट्री में एक रूटीन वर्क नहीं करना कि हाँ इस तरह से ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, आप उसकी टेक केयर करो. नो, नॉट लाइक दैट. यू हैव टू डिजाइन समथिंग, यू हैव टू डेवलप न्यू थिंग्स, यू हैव टू पुट योर इनपुट्स इन दैट कि हम क्या चेंजेस उसमें कर सकते हैं. ओके, तो उस चेंज करने में अब देखते हैं ये बायोलॉजी आपको किस तरीके से हेल्प करती है.
प्लेस, जो फ्यूचर है, फ्यूचर में अभी आपने जैसे सुना होगा कि SKIT में एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है, कंप्यूटर साइंस में ही एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से शायद 4 साल पहले किसी ने इस वर्ड का मतलब नहीं समझा होगा, ना ये वर्ड आया था, बट नाउ दिस न्यू ब्रांच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है इसी में कंप्यूटर साइंस में ही कहीं कोई वेरिएशन की जरूरत थी, किस तरह से एक इंटेलिजेंस डेवलप किया जाए। मुझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बस एक ही मतलब समझ में आता है कि हाँ, किस तरह से हम मशीन्स को या ऐसा प्रोग्राम कर सकें कि वो ह्यूमन वर्क को अपने आप समझ के कर सकें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी वो वाली चीज हो सकती है कि हम किस तरह से बायोलॉजी को उस फील्ड में अप्लाई कर सकें। इंजीनियरिंग का मेन जो बायोलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन है बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अब जो इंजीनियरिंग नॉलेज है, पहले के आज से 15 साल पहले क्या होता था, सिविल इंजीनियर मतलब सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब उसको नौकरी मिलेगी किसी न किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। पिछले 4-5 साल से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉलेज में भी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी कंपनीज आ रही हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स की डिमांड होती है वी हैव टू गो फॉर द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, क्योंकि उसी में स्कोप है। बट कंपनीज आर डिमांडिंग मल्टीडिसिप्लिनरी, वी डू नॉट वांट जस्ट प्रोग्रामर्स कि उनको कंप्यूटर साइंस ही आती हो और वो कंप्यूटर साइंस में ही अपनी प्रोग्रामिंग करके दिखाएं। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए मल्टीडिसिप्लिनरी, ऐसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स चाहिए जो अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सके। प्रोग्रामर्स तो उनको बहुत मिल जाएंगे, जिन्होंने BCA MCA किया है वो भी बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट दे वांट इंजीनियरिंग स्टूडेंट। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का भी IT की एक टॉप कंपनी में प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन पार्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पता है। ठीक है, कंप्यूटर वाले को केवल प्रोग्रामिंग पता है, बट इस प्रोग्रामिंग को यूज कहाँ करना है, किस इंजीनियरिंग के किस फील्ड में यूज करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किस फील्ड में यूज करना है, वो काम केवल एक इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही कर सकता है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। सिमिलरली आज के टाइम में क्या हो रहा है कि काफी सारे फील्ड, मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड जो है वो स्टडी किए जाते हैं। इंजीनियरिंग के साथ साथ बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी है इन्हें भी स्टडी किया जाता है, क्योंकि ऑल द फील्ड्स आर इंटरमिंगल्ड, ये आपस में फील्ड सारे मिक्स्ड हैं, ये सारे फील्ड्स का आपस में कनेक्शन है। हम ये नहीं कह सकते कि बैंकिंग सेक्टर का ये मतलब होता है कि बस आपने पैसे दिए और उन्होंने आपसे पैसे जमा किए। बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे वेरिएशन कमिंग ईयर्स में आप देखेंगे और आपने पास्ट में भी उन सारे चेंजेस को कौन है भाई, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ अंटिल अनलेस इट इज आस्क्ड टू यू। ओके, तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को हम जीनोमिक्स से को रिलेट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जीन्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है ना। जीन्स क्या होते हैं वो बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय जीन और जेनेटिक कोड। यस, रौनक ने भी आंसर लिखा था, ट्राई यूज ऑफ एवरी टाइप ऑफ एनर्जी विच एक्सिस्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ जीन्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, जीन्स या जेनेटिक कोड क्या होता है। यस, एनी स्टूडेंट राइट इन द चैट बॉक्स। अब कौन लिख के बताएगा मुझे, स्वतांशु। स्वतांशु से शायद मेरी कल बात भी हुई थी, कल मैंने कॉल किया था। हाँ, स्वतांशु। यशोवर्धन, इस यशोवर्धन का नाम शायद मैं मिस कर रही थी। यशोवर्धन आप स्पेक्स लगाते हैं शायद, है ना। यस, शतांशु यशोवर्धन, आप लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में। मैम, जो जीन्स होते हैं वो DNA के बने होते हैं, जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, हेरिडिटी ट्रांसफर होता है जिसका। ओके, जीन्स या जेनेटिक कोड नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, DNA में एक जगह पे उनकी पोजीशन होती है, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन सभी के जो सीक्वेंस होते हैं उस सीक्वेंस को हम कहते हैं जीन्स, और इन्हीं नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस में
कोड प्रेजेंट होता है। कोड का मतलब किसी भी पर्सन का ट्रेट कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसका वर्किंग इफिशिएंसी कैसी है, ये सब कुछ उन जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस जीनोमिक्स को भी हम बायोलॉजी के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे आर्टिफिशियल जीन्स बना सकते हैं जो जीन्स जिस ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। सपोज कीजिए कोरोना वायरस की टेंडेंसी है भाई कि लंग्स को जाके इफेक्ट करता है। क्यों करता है लंग्स को इफेक्ट? क्योंकि उसके अंदर ऐसे जीन्स प्रेजेंट है। अगर हम क्या करें, ऐसे जीन्स बना दें या उसके जीन्स का क्रॉस जीन्स बना दें कि उसके इफेक्ट को नलिफाई किया जा सके। वायरस में ऐसा म्यूटेशन जनरेट किया जाए कि वो जो जीन्स लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं उस इन्फेक्शन को नलिफाई कर लें, उस इन्फेक्शन को क्रॉस कर दें, तो हम वायरस को इजीली खत्म कर सकते हैं। अदर देन जीनोमिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? yes, कौन बताएगा मुझे? पिछले बार किसने से बात की थी मैंने? सतांशु से। अब की बार योगेश विल टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी? What is nanotechnology? Yes, Raju Sharma has written the sequence of nucleotides in DNA and RNA. Yes, what is nanotechnology? कौन बताएगा? नैनोटेक्नोलॉजी क्या होती है? अक्सर आप लोग कॉलेज में भी कॉन्फ्रेंस होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, नाम सुनते हैं द टर्म नैनोटेक्नोलॉजी। हर जगह नैनोटेक्नोलॉजी टर्म सुनने को आती है। नैनो का क्या मतलब होता है? लिखो, चैट बॉक्स में लिखो या कोई स्टूडेंट बताओ मुझे। इस गूगल मीट पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वेबएक्स पे स्टूडेंट्स में रेज देयर हैंड एंड आई कैन सी देम क्लियरली। यस, कौन बताएगा मुझे? शुभनेश शर्मा। शुभनेश शर्मा, शुभनेश विल टेल मी। शुभनेश बोलो बेटा। यस मैम। हाँ शुभनेश, क्या होती है बेटा नैनो टेक्नोलॉजी? नाम सुना है आपने? यस मैम, नैनो टेक्नोलॉजी मैम मतलब it's building things on atoms and molecules level. Okay, atoms and molecules. Okay, कोई पार्टिकल है. Okay, please mute yourself. Nano is the use of matter on an atomic, molecular and supramolecular scale for industrial purpose. Okay, श्रिया, कोई पार्टिकल है, आपने उसको छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, जब वो नैनो स्केल पे पहुंच जाता है। नैनो का क्या मतलब होता है? 10⁻⁹ ओके, -6 तो माइक्रो होता है और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ के स्केल पे जब आप उसे छोटा कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, तब उसकी प्रॉपर्टी एक मैक्रो मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में डिफरेंट हो जाती है। नैनो स्केल पे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी मैक्रो स्केल के कंपैरिजन में डिफरेंट हो जाती है और उस डिफरेंट प्रॉपर्टी को हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। वो यूजेस क्या होते हैं, इसे भी कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही आइडेंटिफाई कर सकता है और उस फील्ड को यूज कर सकता है। यस, मेनली एप्लीकेशंस क्या हैं? बायोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इंजीनियरिंग फील्ड में? लाइफ मैट्रिक्स मतलब बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबस्ट्रेट में एनालॉजीज डेवलप करना। मतलब एनालॉजी का क्या मतलब होता है? सिमिलैरिटी डेवलप करना। हमारी बॉडी एक मशीन है, कैसे वर्क करती है? मशीन में जैसे ही कांटा चुभा, हमने रिएक्शन दिया। मशीन के साथ भी यही होना चाहिए। मशीन के साथ भी जैसे ही उसके पास डस्ट पार्टिकल आए, मशीन शुड रिएक्ट कि उसे प्रोटेक्शन चाहिए, उसे कोरोजन को प्रिवेंट करना है, उसे अपना प्रोडक्शन किस तरह से यूज करना है, उसकी हैंडलिंग किस तरीके से होनी चाहिए, जस्ट लाइक दैट। जैसे बायोलॉजिकल सर्किट्स और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन थ्योरी को यूज करना। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है? एक पर्सन से अपनी ऑफस्प्रिंग में ट्रेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, जीन्स को ट्रांसफर किया जाता है। उस इंफॉर्मेशन थ्योरी को हम रियल टाइम मशीन्स में भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना, एक मशीन से दूसरी मशीन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना, बायोलॉजिकल मेथड से, जेनेटिक कोडिंग के मेथड से ये काम इजीली हो सकता है। दैट नीड सम डेवलपमेंट,
इसके लिए कुछ हमें और थ्योरी को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है। एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल देता है। सिमिलरली दिस सिग्नल सिस्टम कैन बी यूज्ड इन मशीन्स आल्सो। एक सेल में जहाँ पे भी मेल फंक्शनिंग होती है, आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, आपका हाथ कहीं से जल गया, दर्द हो रहा है आपको पता चल गया, आप उस चीज को प्रोटेक्ट करोगे। अपने आप वापस से अपना हाथ आग में ले जाके नहीं दोगे कि हम इसे वापस से जला लेते हैं। इसी तरीके से जो एम्पलीफायर वगैरह बनते हैं, जो स्विचेस वगैरह बनते हैं, उसमें भी एंजाइम ट्रांसफर मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, जो रियल टाइम बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स होते हैं, मतलब अपोजिट हार्मोन्स होते हैं, कंट्रोल लूप्स होते हैं, उनमें जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म भी बायोलॉजी से ही अडेप्टेड है। इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो सेंसर्स लगाए जाते हैं, गैस लीकेज के लिए जो डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं, वो भी अल्टीमेटली बायोलॉजिकल बैक्टीरियल सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड हैं। बेसिक उनका वही है। बॉडी का क्या बेसिक होता है? बॉडी का बेसिक होता है कोई भी फॉरेन सिग्नल आप तक पहुंचता है, तेज आवाज आई, कान बंद कर लोगे आप लोग, क्या करोगे? बहुत तेज कहीं ऐसी जगह चले गए जहां बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, आपको बैड ऑर्डर आ रहा है, आप अपनी नाक बंद कर लोगे। जहां आपको बारिश हो रही है वहां आप अपनी बॉडी को कवर कर लोगे। मीन्स आपकी बॉडी को पता है कि हमें किस तरह से खुद को कवर करना है। किसी ने लाल मिर्च फेंक दी, ठीक है, यू विल क्लोज योर आइज। मिट्टी फेंक दी, आप आंख बंद करेंगे। बहुत तेज हवा चल रही है, आप आंख बंद करेंगे। मतलब आपकी बॉडी में अपने आप वो सेंसिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है। आपकी बॉडी में, किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में ये सेंसिंग सिस्टम अपने आप होता है, इनहेरिटेड होता है। इसी तरह का सेंसिंग सिस्टम मशीन्स में या रियल टाइम इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई किस तरीके से किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे सेंसिंग सिस्टम होते हैं? 10 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, हमें भूख लग गई, है ना, वी नीड फूड। भूख लगेगी, पता कैसे चलेगा? आपके स्टमक में के अंदर क्रैम्प्स डेवलप होंगे, आपकी बॉडी में डलनेस डेवलप होगी, आपको एक अनईजीनेस रहेगा बॉडी में कि यू नीड फूड, नाउ द टाइम हैज कम, यू नीड फूड। मतलब बॉडी में इस तरह का कोई सेंस डेवलप हुआ। सिमिलरली किसी भी मशीन में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मशीन को ऑयलिंग की जरूरत है, किसी भी मशीन में कोई पार्ट बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो गया है, तो मशीन शुड टेल यू कि आई नीड दिस चेंजेस, आई नीड लुब्रिकेशन। जैसे होता है ना गाड़ियों में फ्यूल का इंडिकेटर होता है, उसी तरीके से मशीन के इंटरनल डैमेज के लिए भी मशीन शुड टेल यू। और वो कैसे करेगी? जब आप उसमें कुछ इस तरह का सेंसर बनाएंगे। जैसे आपकी बॉडी आपको बता देती है ना कि हमें अब क्या चाहिए, हमें अब सर्दियां हो गई है, हमें अब स्वेटर पहनना है। नाउ द मशीन शुड टेल अस कि अब मशीन बॉडी में इस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा कुछ सिग्नलिंग सिस्टम, ऐसा कुछ डिटेक्टर सिस्टम, ऐसा कुछ सेंसिंग सिस्टम जो कि रियल बायोलॉजी में होता है, वो सेंसिंग सिस्टम मशीन्स में या इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है। आपको कहें कि इसमें कुछ सेंसेस डेवलप करो, किसी मशीन में कुछ सेंसिंग सिस्टम डेवलप किया जाए, तो आप कहेंगे कौन सा सेंसिंग सिस्टम हम डेवलप करें? तो यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम बायोलॉजी। जैसा बॉडी में सेंसिंग सिस्टम होता है, सच टाइप ऑफ सेंसिंग सिस्टम शुड बी डेवलप्ड विद इन द मशीन। तो इसी वजह से हमें बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी को रियल टाइम इंजीनियरिंग में डेवलप करने की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे ह्यूमन जीनोम सिस्टम है, उसको पूरा स्टडी करें जस्ट लाइक दैट कि उस जीनोम, हमें सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो एनिमल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो किस तरह से उस जेनेटिक कोड को हम कंप्यूटेशनल टूल्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम जो ये जेनेटिक कोड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो दूसरे मशीन्स में या टूल्स में अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज को भी हम स्टडी करेंगे। नाउ फिजिक्स क्या एक्सप्लेन करता है? फिजिक्स एक्सप्लेन करता है कि नेचुरल वर्ल्ड किस तरीके से वर्क कर रहा है। और मैथ्स क्या एक्सप्लेन करती है? मैथ्स किस वर्ल्ड को आइडियलाइजेशन की लिए अटेम्प्ट करता है कि यस, हम सपोज कर रहे हैं ये और ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, नाउ करेक्ट, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिजिक्स क्या बताता है? ये नेचुरल वर्ल्ड है,
इसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है, स्टार्स कैसे जा रहे हैं, लाइट कैसे प्रोपोगेट होती है, प्रिज्म कैसे वर्क करता है, एंड ऑल दैट। न्यूटन्स के लॉ जो होते हैं, आइंस्टीन ने E=mc² वगैरह जो भी ये लॉस वगैरह दिए हैं, ये नेचुरल वर्ल्ड की वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव साइंसेस हैं, है ना, जो डिस्क्रिप्टिव फैक्ट्स को नोमेनक्लेचर के मेमोराइजेशन पे हेवीली रिलाय करती हैं। मतलब किस तरह से डिटेल में हम किसी चीज को डिस्कस कर पाएं, ओके, हम किसी चीज के बारे में सोच पाएं, क्योंकि फिजिक्स में तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैथ्स का मतलब होता है दो इक्वेशन को आपस में बैलेंस करना और आपका रिजल्ट करेक्ट आना चाहिए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के केस में क्या होता है, हम कुछ फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे, फिर उन फैक्ट्स में कुछ करेक्शन होंगे। केमिस्ट्री में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बायोलॉजी में भी बहुत सारे प्लस एंड माइनस होते हैं। हमेशा कुछ थ्योरीज दी जाती है वो रॉन्ग हो जाती है, फिर कुछ थ्योरीज दी जाती है वो रॉन्ग हो जाती है, फिर कुछ एक्सेप्शंस वगैरह आते हैं। तो उसके जो डिस्क्रिप्टिव जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एस्पेक्ट है उसको इंजीनियरिंग में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। इंजीनियरिंग इज द स्ट्रीम मेड अप ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। साइंस भी है इंजीनियरिंग में और आर्ट्स भी है। अब आप कहेंगे साइंस तो है बट आर्ट्स कहाँ से आ गई। साइंस क्या होता है, साइंस इज अबाउट नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में जानना, किसी भी चीज का पता होना साइंस होता है। और आर्ट्स का क्या मतलब होता है, उसे इम्प्लीमेंट करना। तो इंजीनियरिंग का मतलब होता है साइंस का जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, फैक्ट्स हैं उसको नोट कर लेगा। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट क्या करेगा, उस फैक्ट को अप्लाई करेगा। आपको पढ़ा दिया है हमने कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, मशीन कैसे वर्क करती है, या इस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। आपको क्या करना है, आपको उसे अप्लाई करना है कि हम इसको किस तरीके से वेरियस इंजीनियरिंग फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। साइंस इज अबाउट नोइंग एंड इंजीनियरिंग इज अबाउट डूइंग। साइंस का मतलब आपको पता है, इंजीनियरिंग का पता आप कर सकते हैं। यू कैन डू दैट वर्क, यू कैन अप्लाई द नॉलेज ऑफ साइंस इन एनी स्पेसिफिक फील्ड, और यही काम आपको करना होता है। इसीलिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हर साल हमें प्रमोट कर दें बिना कुछ सीखे। नो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, यू शुड नो एवरीथिंग। आपने सुना होगा आपके घर के आसपास भी कोई कहेगा कहाँ पढ़ते हो, इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ। अरे इसका मतलब स्टूडेंट इंटेलिजेंट होना चाहिए, इसका मतलब वो स्टूडियस होना चाहिए, इसका मतलब वो हार्ड वर्कर होना चाहिए, इसका मतलब वो लेबोरियस होना चाहिए, इसका मतलब उसको आगे जाके एक अच्छी जॉब मिलेगी। जॉब कब मिलेगी, जब स्टूडेंट की नॉलेज बढ़ेगी। और नॉलेज कब बढ़ेगी, जब वो पढ़ाई करेगा और उस नॉलेज को न कि रट के एग्जाम में पास होके बैठ गया, उस नॉलेज को अप्लाई करेगा, किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई करेगा, किसी चीज में अप्लाई करेगा, किसी चीज के डेवलपमेंट में अप्लाई करेगा। ये जो कंपनीज आपका रिक्रूटमेंट लेती हैं वो रिक्रूटमेंट किस बेसिस पे लेती हैं, परसेंटेज बेसिस पे नहीं लेती हैं। परसेंटेज मैटर करते हैं, पास होना जरूरी है, बट दे सी कि आप अप्लाई किस तरीके से करते हैं। नॉलेज तो है, नॉलेज तो सबके पास होती है, आज किसी को भी पढ़ा दो इतनी देर तक वो सारी नॉलेज उसको मिल जाएगी, बट आप उसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पीपल की सर्विंग में अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। साइंस आपको बताता है कि क्या एक्चुअल में फैक्ट है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या करेगा, वो स्टडी करेगा जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था। नई चीज आप कब ढूंढ पाएंगे, पुरानी चीजें तो सबको पता है कि हाँ ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये लॉ होते हैं, इनको हमें फॉलो करना है। बट फॉलो करने के साथ साथ उनका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, ये एप्लीकेशन पार्ट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को सीखना होता है, और यही काम आपको इस 4 साल में करना है। ये नहीं कि बस पढ़ के रख दो, एग्जाम पास हो गए, एग्जाम में प्रमोट हो गए, बिना प्रैक्टिकल किया हमारा काम चल गया, नंबर आ गए पूरे। नो, नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी कंसेप्चुअली वेरी मच क्लियर, नॉलेज बहुत अच्छी लो, स्किल्स डेवलप करो अपनी, किस तरह से अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि देखो लाइफ लॉन्ग आप लोगों को इसी फील्ड में रहना है। भाई किसी का फैमिली बिजनेस हो तो अलग बात है, बट लाइफ लॉन्ग यू हैव टू लिव इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको
अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन पार्ट लेना होगा। और नॉलेज अगर इतनी शार्प रखोगे, नॉलेज अगर इतनी साउंड रखोगे, तो अपने आप एप्लीकेशन पार्ट आप कर सकते हैं। Okay, I think it's 1:38, so I have taken much of your time. Now, one more thing, don't leave the class. I want to know what is the method for taking your attendance. Is there any shortcut method? वो बता सकता है बेटा? कौन बताएगा You मुझे? can take the screenshot and later put it on the ERP. Okay. Screenshot is the only solution, है ना? चलो फिर मैं स्क्रीनशॉट ले। ऑप्शन भी आता है जब गूगल की पूरी क्लासरूम रिपोर्ट एक्सेल में कन्वर्ट होके आ जाती है। चाहता है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? नीचे मुझे कुछ दिख रही ना, मीट अटेंडेंस कलेक्टर, ऐसा Yes, कुछ है ma'am. क्या? इसके थ्रू हो जाता है। चलो इसको तो मैं बाद में देख लूंगी। अभी मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ सो दैट आई कैन मार्क योर अटेंडेंस, है ना। कोई भी स्टूडेंट प्लीज लीव मत करना क्लास को। आर्यन मेवारा, मोहित सिंह, प्रीतिश, राधिका, राघव, राहुल मीना, राहुल नागरवाल, राहुल टाक, राहुल ने कोई रिप्लाई नहीं किया अभी तक, रजत, रजनीश, राजू, रवि कुमार मीना, रिंकू नाम का लड़का भी था, हाँ यस रिंकू इज देयर, रिंकू यादव, ऋषभ शर्मा, ऋतिक सिंह, ऋतुराज, रोहित कुमार चौरसिया, रोहित कुमार मीरवाल, रौनक वैष्णव,